Good morning children. I hope you are doing well. Now I am going to explain today's topics. What is date today? 7 July 2021. What is day today? Wednesday. Wednesday means Budhwar. Now topics. First, GK about 5 birds. Second, rhyme. Kare kabutar gutter ghum. Third, story about bagla or kekda. Fourth, homework in art book, page number 25. First topic is about birds. Children, birds are the most beautiful creature in this world. They are found everywhere and plays an important role in keeping the balance of nature. Beak, feathers, tail and no teeth are main characteristics of bird. Birds can fly because of their hollow bones. Now I am going to tell you about 5 birds. Peacock. Peacock means moth. Peacock is the national bird of India. It has a long neck. It has big fan-like colorful feathers. The peacock loves to dance in the rain. They eat seeds and small insects. They make the sound pee-hoo, pee-hoo. Next, crow. Crow means kawa. It is black in color. It has a sharp beak to eat their food. The crow is regarded as a clever bird. They eat plants and animals. They make the sound cow, cow. Next, sparrow. Sparrow means goraya. They are of small size. It is brown in color. They are very active in nature. They love to eat seeds with their tiny beak. They make the sound trip, trip. Next, parrot. Parrot means tota. It is green in color. It has red curved beak and sharp claws. It is one of the beautiful birds in the world. They love to eat seeds of the plant. They can talk like us. Next, pigeon. Pigeon means kabutar. It has small feet and beak. They love to eat seeds. It has grey feathers with a shiny green neckband. They make the sound gutter. Children, learn and revise it properly. And you have to send a presentation video telling 5 birds' name. Next, rhyme. What is the name of rhyme? Kare kabutar gutter ghum. Let's begin the rhyme. करे कबूतर गुट्टर गूं, बड़े ध्यान से इसे सुनो, लगता भोला भाला है, इसका रूप निराला है, इसका रूप निराला है. Fantastic! Well done everyone. Let's sing once again. करे कबूतर गुट्टर गूं, बड़े ध्यान से इसे सुनो, लगता भोला भाला है, इसका रूप निराला है, इसका रूप निराला है. Excellent! I hope you enjoyed the rhyme. For this, clap yourself. Next, story. What is the title of story? बगुला और केकड़ा. एक जंगल में बड़ा सा तालाब था. उस तालाब में जानते हो कौन रहता था? बहुत सारी मछलियां और एक केकड़ा. वहीं तालाब के पास एक पेड़ था.
उस पेड़ पर एक बगला रहा करता था। वो बगला उन मछलियों को खा करके अपना पेट भरा करता था। दिन ऐसे ही गुजरते गए और कुछ समय बाद वो बगला बूढ़ा हो गया था। बूढ़ा और कमजोर होने के कारण वो शिकार पकड़ने में असमर्थ हो गया था और उसे अक्सर भूखा रहना पड़ता था क्योंकि वो मछलियों को पकड़ नहीं पाता था। एक दिन बगले ने सोचा कि इस तरह से भूखे रहकर तो मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगा। तो उसने एक तरकीब सोची और वो दुखी होकर के तालाब के पास जाकर बैठ गया। उसके पास बहुत सी मछलियां आती और वापस चली जाती, लेकिन बगुला ना तो किसी को पकड़ता और न ही किसी मछली को खाता। इसी तरह घंटों गुजर गए। यह सब एक केकड़ा बहुत देर से देख रहा था। उत्सुकता पूर्वक वह बगुले के पास गया और बगुले से पूछा, क्या बात है बगुले भाई, आज तुम क्यों उदास हो और क्यों कुछ नहीं खा रहे हो? यह सुनकर बगुला बोला कि मैंने पास गांव वालों से सुना है कि इस तालाब को वो सुखाने वाले हैं। अगर वो इस तालाब को सुखा देंगे तो इसमें रहने वाली सभी मछलियां मर जाएंगी और उनके मरने से मैं भी बिना भोजन के ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगा। यही सोच करके मैं दुखी हूँ। केकड़े ने वापस तालाब में जाकर यही सब बातें सब मछलियों को बताई। तो यह सुनकर मछलियां परेशान हो गई और परेशान होने के बाद सबने मिलकर के इसका हल निकाला और सोचा कि हम बगले से जाकर के मदद लें, वो हमें किसी दूसरे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सकता है। तो सब मछलियां एक साथ इकट्ठा हुई और केकड़े के साथ जाकर बगले के पास पहुंची और बगले से बोली, बगले भाई क्या आप हमें एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सकते हैं? तो बगला बोला, हाँ दोस्तों, यहीं पास ही में थोड़ी दूरी पर एक विशाल सा तालाब है। मैं तुम सब मछलियों को कुछ ही दिनों में वहां पहुंचा दूंगा, क्योंकि मैं सबको एक साथ अपनी चोंच में नहीं ले जा सकता, इसलिए मैं एक एक करके आप सबको कुछ ही दिनों में वहां पहुंचा दूंगा। सभी मछलियां बगले के इस सुझाव को मान गई। बगला अब एक एक करके मछलियों को ले जाने लगा। बगला मछलियों को ले जाता, लेकिन उन्हें दूसरे तालाब में नहीं ले जाता। वो एक ऊंची सी चट्टान पर ले जाकर के उन्हें खा जाता। अब बगला बहुत खुश था क्योंकि उसे बिना किसी मेहनत के उसका भोजन मिल रहा था। कुछ दिन तक ये सब ऐसे ही चलता रहा। अब एक दिन केकड़े की बारी आई। किसकी बारी आई? केकड़े की। बगले ने केकड़े से कहा कि मैं तुम्हें चोंच में नहीं ले जा सकता हूँ, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। यह सुनकर केकड़ा उसकी पीठ पर बैठ गया और बगला उसे लेकर के उड़ गया। कुछ दूरी तक उड़ने के बाद केकड़ा बगले से बोला, क्यों बगले भाई, क्या दूसरे तालाब में जाकर के वो मछलियां खुश हैं? बगले ने सोचा कि ये केकड़ा वापस तो जा नहीं सकता, इसलिए क्यों ना मैं इसे सच बता दूं। और बगला जोर से हंसा, हा हा हा, और केकड़े से बोला कि यहाँ आसपास कोई तालाब नहीं है, मैंने तो तुमसे झूठ कहा था, पर हाँ वो मछलियां जिन्हें मैं ले गया था वो सब मेरे पेट में खुश हैं और अब मैं तुम्हें भी उन्हीं के पास ले जाने वाला हूँ। यह कहते हुए बगले ने चट्टान पर पड़ी हुई मछलियों की हड्डियां केकड़े को दिखाई। यह देख करके केकड़े को बहुत तेज गुस्सा आया। केकड़े ने सोचा कि अगर ये बगला जिंदा रहा तो बाकी सभी मछलियों को भी ये खा जाएगा। गुस्से में केकड़े ने बगले से कहा कि हम सब ने तुझ पर विश्वास किया और तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया, हमें धोखा दिया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यह कहते हुए केकड़े ने अपने तीखे पंजों को बगले की गर्दन में चुभा दिया और बगला नीचे आकर के धरती पर गिर गया और मर गया। केकड़े ने वापस तालाब में जाकर के सारी बात मछलियों को बताई। यह सुनकर मछलियों ने केकड़े की समझदारी के लिए प्रशंसा की और उन्हें बगले से बचाने के लिए उसको धन्यवाद दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मोरल ऑफ द स्टोरी कि हमें कभी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए और हमेशा
सोच समझकर काम करना चाहिए। नेक्स्ट, homework in art book. Children, you have to fill this page of your art book. Let's do it. चिल्ड्रन, यह आपकी आर्ट बुक का पेज नंबर 25 है। याद रहे, आपको हमेशा कलर वही करना है जिसकी आउटलाइन दी गई है पिक्चर में। Children, fill it in neat and clean way and send its pic to me. Recap. What we learned today? First, we learned about 5 words. Second, rhyme. What we sing today? We sang करे कबूतर गुट्टर घूम. Third, story. What the story is about? It is about बगुला और केकड़ा. Fourth, homework in art book, page number 25. That's it for today. Goodbye and have a fantastic day.